Manva sir, you can start with your welcome address, sir. Hello. Now you start, madam. Yes, sir. We'll Hello. start. So yes, sir. Please start with your welcome address, sir. Hello. I'm audible. Yes, sir. Yes. And switch on your माझा camera आवाज also, येतो? sir. Oh, sir. And please switch on your camera also, sir. Okay. Hello. No. Madam, we start now. Yes, sir. Okay. Namaskar. Very good afternoon. Uh, Very good afternoon to everyone. Respected Principal Dr. D.V. Pawar sir, Vice Principal Dr. Sima Sapde madam, Dr. Kaude sir, Professor Sontakke, Professor Minal madam, life member, management, respected head of the departments of all subjects of Kirti College, and respected staff member, and my dear student. I am Dr. Devra Manwar. Welcome to all. Today, Women Development Cells of Kirti College organize one guest lecture on the understanding gender equity. Today's chief guest is Mr. Praveen Thote sir. I welcome to Praveen Thote sir. Today's topic is gender, understanding gender equity. It is very important topic for the today's guest lecture. I welcome to all. I would like welcome to all respective persons, management, teachers. Uh, Today's topic is very important for students because generally economics can measure development levels of the economy of the country on the gender equity. Gender equity is a one index, important index of the measurement level of the economic development. Generally, economic, social, political development can measure from the gender equity. Gender inequality is a major obstacle in the development process of any economy or country. Very often, girls and women facing by inequality in the economy in the country. In that situation, today's topic is very important for us because girls and women also play very important role in the economic or social development process of the society. Then it is very important to study of understanding gender equity. I thank to Kirti College uh, principal, WDC in charge, Professor Shubhasri Madam, and welcome to all. I again welcome to Chief Guest, Mr. Praveen Pote sir. Welcome to all. Uh, now I will hand over mic to Professor Dheeraj Madam. Thank you, Madam. Thank you all. Thank you so much, sir. A very warm welcome to today's honorable speaker, Mr. Praveen Thote, Principal Sir, Vice Principal, IQAC Chairman Sir, all the committee members, and my dear friends. I'm here to give a short insight into Women Development Cell of the college. The year of establishment is 2004. It started with the very first convener, Professor Medha Dhapre from 2004 to 2008, then taken over by Major Dr. Urmila Sarkar, 2008 to 2019, and then it came down to Dr. Smita Padgaonkar in the year 2019-2020. Currently, it is headed by Professor Shubhashri Parab till date. The Women Development Cell was a statutory body for the prevention of sexual harassment of women. The main objective of WBDC was to look into the grievances
of teaching staff, non-teaching staff, and students, especially in cases of gender discrimination. The formation of a college level Women Development Cell was made mandatory by the University of Mumbai after the Vishakha judgment in the year 2001. In compliance with this mandate of the university, the Women Development Cell of Kirti M. Dungarsi College was established in the year 2004. Now, the main role of WDC is to promote general well-being of girl students and teaching and non-teaching women staff. The objectives outlined are to promote general well-being of female students, teaching and non-teaching women staff of the college, to deal with the relevant problems and grievances of the female students, teaching and non-teaching women staff, to create awareness about health and hygiene among girl students, to create social awareness about the gender sensitization and gender discrimination, uh, to create social awareness and to develop soft skills among the girl students by means of training programs and workshops to develop their personality and also to empower them for being self-reliant, to bring about awareness about the various women's rights and legal formalities as and when needed. Some of the distinguished activities conducted since inception of the cell. We started off every year we do annual orientation programs for various classes. We are conducting workshops very relevant with the issues like premarital counseling, gender sensitization, self-defense, preparation of ready-to-eat food, preparation of ready-to-cook food, soaps and shampoo making, nail art, nutritious food recipes, and Warli painting. Also to give them interactive sessions with people, with experts from the industry to give them more clarity on their issues. We do conduct guest lectures as well, like topics on gender sensitizations and gender discrimination, legal formalities at police station, importance of helpline 103, role of women at various levels, breast cancer, awareness, thalassemia, importance of nutrition in growing girls and women in general, and train your mind. And since we have all the students, so competition spirit is always kept up so that the best of the talent comes forward by organizing PowerPoint presentations, essay writing, poster making, street plays and skits, and elocutions as well. There's a very effective, emotionally strong drama time and again presented, Mulgi Jhali Ho. We do have NGOs as well involved, and we are continuously working with them like Bhartiya Sri Shakti, Mawa, Akshara, Sri Shakti Sangathan. I would like to bring on the highlight of the last 3 years that we have been organizing Young Women Entrepreneur Talent Hunt exhibition cum sale, wherein all the girls, they come up with their handmade items. It can be any food preparation or any other article, jewelry, even packets, envelopes, variety of things made by them, by all the girl students, and it really promotes their self-confidence. It is the main idea is to promote self-reliance in the girls. And yes, another highlight, Dr. Urmila Sarkar is a recipient of Mumbai University's Adarsh Shikshika Puraskar for Women Empowerment and Education in the year 2009. In pursuit of women empowerment, Women Development Cell diligently works as a team to bring out the best in our girls. Thank you so much. And now I would call upon Dr. Seema Saple, Vice Principal and HOD of Self-Finance Courses to address the students. Thank you so much. Over to Seema ma'am. Hello, good afternoon everyone. Today's chief guest and speaker, Mr. Praveen Thote, convener of Women Development Cell, Professor Shubhashri Parab, and other members of WDC,
my fellow colleagues, all office bearers, and my dear students participants. On behalf of Kirti College, I welcome you all. The topic of today's lecture is very important and close to my heart. Rather, it is close to the heart of girl or woman of any society of any country. I would like to appreciate the initiative taken by WDC for the discussion of this topic of gender equity. It is need of the hour. All students, actually everyone, should be made aware of gender equity. Remember that gender equity begins in mind. It is an individual perception of treating another person at par with himself or herself. It is more of a practice that you should follow every day in your mind as well as actual practice. It is the time that we all see gender as a spectrum instead of two sets of ideas. No gender is superior. Actually, in any society, the word gender should not exist. All should be equal. Only then the country will truly flourish. Now with this, I would like to hand over the mic to Professor Shubhashri Parab and wish WDC team good luck. And thank you, Mr. Praveen Thote, for accepting our invitation and giving your time to enlighten our students. Thank you very much. Over to Shubhashri. Thank you, ma'am, for your motivational words. Good afternoon, everyone. Before I introduce our chief guest for today's program, let me throw light on aim of the program. This initiative is one step towards building gender-balanced society, where everyone have equal rights and opportunities. It is also to bring change in the mindset of young generation who are the future citizen of our country, that is you all. It is also not to show any of the gender in bad light. Let me take this opportunity to introduce today's guest speaker, Mr. Praveen Thote, who is a gender trainer and project coordinator from NGO named MAVA. MAVA stands for Men Against Violence and Abuse. This NGO is based in Mumbai. It works on to prevent gender-based violence since last 27 years. They are currently working across the country and some programs with NSS unit of Mumbai University, including Kirti College. Mr. Praveen Thote is postgraduate in sociology from Nagpur University and also from development studies from Azim Premji University, Bangalore. He's also working in this field for last 6 years. Before our guest speaker could start our session, I would like to quote Mrs. Watson's word from United Nations Women's Speech 2014. It goes like, both men and women should feel free to be sensitive. Both male and female should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum. Here I'm including even the transgender, and not as two opposing set of ideas. Now I hand over the session to our chief guest and welcome him once again. Thank you all. Sir, the session is all yours. हेलो हेलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तक मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो सही से पहुँच रहा होगा और थैंक यू सो मच कीर्ति कॉलेज जिनके साथ हम लोग पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से हम लोग काम करते आ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस कोविड सिचुएशन में भी हमको कीर्ति कॉलेज के साथ काम करने का एक मौका मिला है। हमने जब अपने कॉलेज में कुछ फॉर्म्स भरे हैं तो एक कॉलम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले आएगा हमारा नाम, फिर आएगा डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद 2 कॉलम्स होते हैं जनरली, कभी सेक्स होता है फिर कभी जेंडर होता है। तो हर बार हमने ये देखा है कि जब भी सेक्स या फिर जेंडर लिखा हो तो हम बिना सोच समझ के
ये लिख लेते, जैसे अगर मैं लिख लूं तो मैं मोस्टली यही लिखूंगा कि प्रवीण थोटे मेल, प्रवीण थोटे मेन। लेकिन हमें ये समझ नहीं है कि मेल और मेन ये दोनों चीजें अपने आप में अलग है, विमेन और फीमेल ये दोनों चीजें अपने आप में अलग है। और उसी तरह से जैसे हमने काफी सारे नाम सुने अभी तक, LGBTIQ, ट्रांसजेंडर वगैरह वगैरह, ये सारे शब्द अपने आप में अलग है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, और इस PPT के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग जेंडर के बारे में बात करते हैं, सेक्स के बारे में बात करते हैं, तो कौन सी चीज है जो अपने आप में काफी अलग होती है। जब मेरी स्क्रीन दिखाई दे तो प्लीज मुझे कोई बताइएगा कि Yes, sir, we can see your screen, sir. Yeah, okay. Thank you, ma'am. Okay. So if you can make it full screen, that will also look good. So अभी full screen है? Oh, okay. Okay, fine. Oh, yes, sir. Great. Yeah. Okay. So हम बात करेंगे कि what is the gender? Gender basically क्या होता है? तो ये जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और काफी सारे स्टीरियोटाइप्स बन चुके हैं कि जब जब हम कुछ नाम सुनते हैं तो हमारे आमने सामने कुछ चीजें आती हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर अब आप देख रहे होंगे, तो जब जब मैंने ये शब्द बोला है कि औरतें, विमेन्स आर, कि हमने काफी बार सुना है, या फिर ये स्टीरियोटाइप है कि वो बहुत बातें करने वाली होती है, बातों की होती है, टॉकेटिव, वो सेंसिटिव होती है बाकी लोगों के फीलिंग्स को लेके, दे आर इमोशनल्स, दे आर काइंड, दे आर फेयरफुल, दे आर ऑलवेज फॉलोअर्स, वो हर बार पैसिव रोल में रहती है, वो हर बार डिपेंडेंट होती है, ठीक है, और वो हर समय सबऑर्डिनेट होती है। ठीक उसी तरह से हमारे समाज में काफी स्टीरियोटाइप्स मेंस के भी बन चुके हैं। जब जब हम लोग पुरुषों के बारे में बात करते हैं तो एक स्टीरियोटाइप, एक फॉर्मेट बन चुका है कि पुरुष अगर कहा जाए तो वो इस प्रकार का होगा, जैसे कि वो बहुत अग्रेसिव होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डोमिनेंट होता है, वो एक्टिव होता है, वो ज्यादा बात नहीं करता, ही इज ऑलवेज टफ मैन, वो लॉजिकल होता है, वो बहुत क्रूर होता है, वो ब्रेव होता है और वो हर समय लीडर्स के रूप में रहता है। जो भी लड़का इन सारे स्टीरियोटाइप्स को फॉलो नहीं करता, जो लड़की स्टीरियोटाइप को फॉलो नहीं करती, उसे हमारे समाज में कुछ अलग नजर से देखा जाता है। तो जैसे कि ये दोनों चीजें जो है कि अगर हम लोग कहेंगे कि औरतें इस प्रकार होती है और पुरुष इस प्रकार होते हैं, मेंस इस प्रकार होते हैं, वुमेन्स इस प्रकार होती है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी सोसाइटी ने हमको दी गई चीजें हैं। अब आपने आपके घर में, बाहर, आपके सोसाइटी में, आपके कॉलेजेस में कई बार देखा है कि बहुत सारी औरतें हैं जो इंडिपेंडेंट है, बहुत सारी औरतें ये है जो एक्टिव होती है, बहुत औरतें वो हैं जो बहुत कम बात करती हैं, वो लॉजिक के साथ बात करती है। हमारे काफी सारे लीडर्स जो है वो भी विमेन्स है। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे मेल्स है, मेन है कि जो इमोशनल है, दे आर इमोशनल, बहुत काइंड है, ठीक है, वो कभी कभी बहुत बार पैसिव रोल में भी रहते हैं, वो हर बार अग्रेसिव नहीं रहते, वो मेंस आर डिपेंडेंट, वो भी बहुत जगह हमने डिपेंडेंट देखा है। तो अभी ये जो दोनों कॉलम मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये दोनों कॉलम हमारी सोसाइटी ने हमको दिए गए हैं। अब सोसाइटी बोलती है कि लड़का है तो तुझे अग्रेसिव बनना पड़ेगा और लड़की है तो तुझे शर्माना पड़ेगा, लेकिन क्या ये हमारे बर्थ, हमारे जन्म से निर्धारित होता है या हमें सोसाइटी ये चीजें देती है? ठीक, तो उसको समझने के पहले हम लोग आगे की स्लाइड पर चलते हैं। तो पहली चीज, हमको दो चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो है सेक्स और जेंडर। चूंकि मैं एक एडोलेसेंट हूं, मैं एडल्ट हूं, और मैं उम्मीद करता हूं
कि आप भी इन शब्दों को शब्दों के रूप में ही लेंगे। तो जब हम काफी बार जब हमने सेक्स ये शब्द सुना है तो हमारे दिमाग में इंटरकोर्स या फिर एक्टिविटी आती है। और ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमने हमारे समाज में देखा है कि जब जब कुछ बातें होती है, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो सेक्स का मतलब ये होता है कि कोई लोग इंटरकोर्स कर रहे हैं, बट इंटरकोर्स सेक्स का मतलब नहीं होता। तो जब हम हमारे कॉलेज में हमारे एप्लीकेशंस भरते हैं, हमारे एडमिशन का फॉर्म भरते हैं, तो वहां पर जो कॉलम्स होते हैं उसमें आपने ये शब्द देखे होंगे, एक होता है सेक्स और दूसरा होता है जेंडर। अब दोनों चीजें अपने आप में अलग है, और वो इस प्रकार है कि सेक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकली हमारे बॉडी के अंदर दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है XX और एक होता है XY। तो सेक्स जो है हमारे क्रोमोसोम के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। जैसे मेरे बॉडी में दो क्रोमोसोम है, जिसका नाम है X और जिसका नाम है Y। तो मैं आइडियली मेल माना जाऊंगा, बायोलॉजिकली मेरी जो पूरी बॉडी है वो मेल्स मानी जाएगी। अगर मेरे बॉडी में X और XX दो क्रोमोसोम है तो मेरे पूरे शरीर को फीमेल बॉडी के रूप में देखा जाएगा। अब सेक्स ये चीज है कि जो हमें बाय बर्थ मिलती है और ये हमारे शरीर में होती है। अब जैसे हमारे मान लो कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है और हम लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ये बताना चाहते हैं कि हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है, तो हम लोग क्या चीज है जो देख कर ये बताते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है? क्या कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है? Sir, students are right now muted, so ओके they will be ओके, ठीक unmuted ठीक during ठीक, question answer sessions. श्योर ओके। सो जब जैसे मान लो कि मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे ये बताना है कि मुबारक हो, हमारे घर में लड़का हुआ है, तो मैं उसके शरीर पर कौन से कपड़े हैं, उसको मूंछ है कि दाढ़ी है, उसके बाल छोटे हैं कि बड़ी है, उसने शर्ट पहना है कि उसने फ्रॉक पहनी है, इसके आधार पर मैं नहीं बताता। मैं बताऊंगा कि उसके जेनिटल्स क्या है, उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको पीनस है या फिर उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजाइना है। इसके आधार पर मैं बताऊंगा कि हमारे घर में लड़की हुई है कि हमारे घर में लड़का हुआ है। इसे कहते हैं हम सेक्स। आप सभी के पास अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो उसमें लिखा होगा कि आपका सेक्स क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। अब ये होगा सेक्स। अब दूसरी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं जेंडर। अब जेंडर क्या है? जेंडर वो चीज है जिसको मराठी या हिंदी में लिंग भाव कहा जाता है। जेंडर वो चीज है जो हमको सोसाइटी प्रोवाइड करती है कि आपका रोल क्या है, आपका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, आपने किस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए, आपके पूरे शरीर के, आपके रहने चलने बातें करने का ढंग तरीका, एट्रीब्यूट्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो सोसाइटी डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल कि आज के सेशन के समय अगर मैं बात करते करते ऐसे चेहरे पर हाथ रख कर उसे शर्मा के अगर मैं हंसना शुरू कर देता तो काफी सारे लोग थोड़ा डाउट में होते हैं, यार ये कौन है, लड़का है लड़की है। और हमारी रोज की बोल भाषा के शब्दों में अगर बात की जाए तो कोई मुझे 6 नंबर कहता, कोई मुझे छक्का कहता, कोई मुझे मीठा कहता। अगर मैं लड़की होती और मैं एकदम ऐसे छाती चौड़ा कर बात करती ऐसे बड़े आवाज में कि बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति कॉलेज का कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया, तो काफी सारे लोगों को ये भी दिक्कत होती कि ये कैसी लड़की है, ये ऐसे कैसे बात कर सकती है। तो जो एट्रीब्यूट्स है ये हमारी सोसाइटी ने निर्धारित की है, डिसाइड की है कि आपने अगर एक पर्टिकुलर सेक्स में पैदा होते हो तो आपको किस तरह से परफॉर्म करना है बेसिकली। सो अगर आप में से कुछ लोग स्कार्फ का अगर इस्तेमाल करते होंगे, कुछ लोग दुपट्टे का इस्तेमाल करते होंगे, तो अगर आपने मान लो कि एक दुपट्टे को, स्कार्फ को आपके गले के राउंड में अगर उसको बांध लिया तो कोई ये नहीं बोल सकता कि वो लड़का है कि लड़की है। बहुत समय तक हम लोग कह सकते हैं कि काफी सारा मतलब मिक्स लगता है, लड़का हो सकती है या फिर लड़की हो सकती है।
अगर वही दुपट्टा, वही ओढ़नी जैसे हम लोग सलवार पर पहनते हैं, उस तरह से दोनों साइड में अगर पहन ले तो 101% सारे लोग कहेंगे कि ये लड़की है। अब हम कपड़े किस तरह से पहनते हैं इस पर डिसाइड होता है कि हमारा जेंडर क्या होता है। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब उसको और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्स जो है वो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे मैं लड़का हूं तो मुझे पीनस है, मुझे दाढ़ी और मूंछ है। ठीक, उसी प्रकार मेरी चेस्ट ज्यादा बढ़ नहीं सकती, मेरे चेस्ट पर बाल आएंगे। अगर मैं लड़की हूं तो मुझे ब्रेस्ट रहेगा, मुझे वजाइना रहेगी, मुझे पीरियड्स आएंगे। तो मेरा सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इसको हम लोग बायोलॉजी के रूप में देखते हैं। और ये जो है सेक्स हमको बाय बर्थ मिलता है, जन्म पर भी डिसाइड होता है कि ये लड़का है या फिर लड़की है, ये नर है। अगर और उसको आसानी से समझेंगे कि ये नर है या फिर ये मादी है। और सेक्स इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि सर हमने तो बहुत बार सुना है कि सेक्स चेंज ऑपरेशन भी होता है, लेकिन सेक्स चेंज ऑपरेशन अपने आप में एक अलग टॉपिक है और वो अलग इशू है, हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक, तो फिर से एक बार मैं बोलता हूँ कि सेक्स बायोलॉजिकल है। अगर मैं लड़का हूं तो मैं पीनस लेकर पैदा होऊंगा, मेरे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो प्रमाण है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक, एस्ट्रोजन मेरे बॉडी में बहुत कम होगा, मुझे दाढ़ी आएंगी, मुझे मूछें आएंगे और मेरा जो क्रोमोसोम होगा वो XY होगा जो जन्म के आधार पर निर्धारित होगा। अब उसी तरह से जेंडर जो होता है वो हमारे सोसाइटी के माध्यम से निर्धारित होता है और जो हमको सिखाया जाता है बचपन से ही, छोटी छोटी मोटी मोटी एक्टिविटीज की जाती है जिसके आधार पर ये पूरा बिहेवियर हमको सिखाया जाता है। अब वो कैसे सिखाया जाता है, एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हमारे समाज में हमने कई बार देखा है कि जब एक लड़का होता है और वो लड़का जब रोना शुरू कर देता है तो उसको हर बार ये बोला जाता है कि कैसा लड़का है, रोता है। ठीक है, अगर वो चेहरे पे हाथ रखकर हंसना शुरू कर देता है तो उसको बोला जाता है कि कैसा लड़का है, हंसता है। अगर किसी लड़के ने मेरे बाल बड़े कर दिए तो बोला जाता है कि कैसे लड़कियों जैसे तूने बाल बढ़ा। ठीक उसी तरह से अगर कोई लड़की लड़कों की तरह चलना शुरू करती है, उसके हाव के एक्सप्रेशन उस तरह से होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैसी लड़की है, लड़कों की तरह रहती है, लड़कों के तरह। तो ये जो तरीके हैं ये तरीके हमारा समाज निर्धारित करता है जिसकी शुरुआत बहुत ही बचपन से होती है। मेरे घर में लड़का पैदा हुआ है और मैंने आपको इनवाइट किया है कि मेरे बच्चे के 4-5वें जन्मदिन पर आप हमारे घर में आइए। और जब आप हमारे घर के प्रोग्राम में आओगे, बच्चे के बर्थडे पर आओगे, तो आप अपने साथ कुछ सामान लाओगे, कुछ गिफ्ट्स लाओगे। तो अगर लड़का पैदा होता है तो हम लोग क्या लेकर जाएंगे, शर्ट और पैंट लेके जाएंगे। हम लोग उसके लिए जो खिलौने लेंगे वो खिलौने हो गए, क्रिकेट की बैट होगी, बॉल होगी, फुटबॉल बॉल होगा, कार्स होंगे, उसके बाद साइकिल होगी। इस तरह के खिलौने हम लोग लेके जाएंगे। जब हम लोग उसके लिए कपड़े लेंगे तो कपड़े किस प्रकार के होंगे कि मोस्टली ब्लैक कलर हम लोग फॉलो करेंगे या फिर थोड़ा सा वाइट। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे। और लड़की है तो उसके लिए हम लोग पिंक कलर को प्रेफरेंस देंगे, पर्पल कलर को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, थोड़ा सा क्रीमी कलर को हम लोग प्रेफर करेंगे। इसके साथ ही उस लड़की के लिए हमको अगर गिफ्ट लेकर जाना है तो पहले हम लोग उसको कान में बाली लेंगे। ठीक है, उसके लिए चैन लेंगे, उसके लिए जिसको पेजाब मतलब मराठी में पाई पट्टी कहा जाता है, पैजन जिसको कहा जाता है वो लेंगे। उसके लिए हम लोग फ्रॉक लेंगे, उसके लिए स्कर्ट लेंगे। इस प्रकार के कपड़े लेंगे। और ये कपड़े जब हम लोग काफी बचपन से पहनना शुरू करते हैं, उस तरह से रहना, उस तरह से चलना, उस तरह से बातें करना शुरू कर देते हैं,
इसका मतलब है कि जेंडर हमको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है और नहीं करना है। और दूसरी चीज, जैसे कि काफी सारे जगह हमने देखा है, मैं अगर मुंबई का एग्जांपल दूंगा तो लोग कहेंगे कि नहीं सर ये मुंबई में नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा सा बोरीवली स्टेशन क्रॉस कर लीजिए और आपको सच्चाई और सही तरीके से मालूम होगी। 7 बजे के बाद लड़की अगर घर में ये नहीं बताती कि वो कहाँ पर है, तो उसको 10 सवाल पूछे जाएंगे कि तू कहाँ थी, किसके साथ थी, कौन तुम्हारे साथ था, यूं इतना समय क्यों लगा। अगर वो लड़का है तो उससे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि तू किसके साथ था, क्यों था, क्या हो गया, तूने दारू पी नहीं पी, वगैरह वगैरह कुछ चीजें नहीं। तो हमारे समाज में कौन घर के बाहर कितने बजे तक रह सकता है और किन कारणों की वजह से रह सकता है, ये जो चीजें है ये हमारे जेंडर के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे मैं लड़का हूं तो मेरे घर पर कभी ये मुझसे सवाल नहीं पूछा जाता, तो पूछा जाता कि इतना समय तो बाहर क्यों था, किसके साथ था। लेकिन मेरे बहन को ये सवाल पूछा जाता है। हमारे आज के जो ऑर्गेनाइजिंग टीम में काफी सारे वुमेन्स हैं, अगर वो कॉलेज से लेकर जब कॉलेज से बाहर चली जाती है और वो जब घर निकलती है और उनको जब काफी समय लगता है तो उनके घर वाले उनसे पूछते हैं कि आज इतना समय क्यों लगा, और उनको इस बात का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। लेकिन काफी सारे मेल्स टीचर को ये एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता होगा। काफी मेल्स टीचर जो है वो घर पे जाकर खाना नहीं बनाते होंगे, लेकिन औरतों पर ये जिम्मेदारी कि उनको घर में खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, उनको जैसे हम लोग कहते हैं कि उनको संस्कारित करना, उनको संस्कार देना है कि क्या सही है क्या गलत है। ये से हमारा जेंडर निर्धारित करता है, और ये जो जेंडर है ये हम लोग कर सकते हैं, इसको बदला जा सकता है कॉन्शियसली, बहुत सारे एफर्ट्स लगा के। अब इसको समझेंगे तो आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर होगा जिसमें सेक्स और जेंडर ये दोनों चीजें कितनी अलग अलग है और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो सेक्स जो है वो क्रोमोसोम के आधार पर निर्धारित होता है, उसके साथ ही जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जेनिटल्स है, इसके निर्धारित किया जाता है और हार्मोन्स के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सबसे महत्व, जैसे शुरुआत में ही एक हमारे सर ने कहा था कि हमारा अलग अलग जगह पर बटा हुआ है, सेक्स के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लेकिन हमारे साथ नेचर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर ये जो क्रोमोसोम है, जो XXXY है, इस प्रकार का आपको डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखेंगे। लेकिन जो हमारा जेंडर है वो जेंडर किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस करता है, किस प्रकार के रूल्स देता है, आप देख सकते हो। तो जैसे लड़की है तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की होगी, उसको केयरिंग वाला जॉब। मान लो एक मिनट के लिए आप सभी लोग आंखें बंद कर लेते हो और मैं आपको पूछता हूं कि ये शब्द, ये वर्ड सुनने के बाद आपके चेहरे के सामने किसकी, औरत की या पुरुष की, मर्द की या औरत की, मेंस या विमेन की, क्या जवाब होगा आपका? मतलब कोई फैकल्टी भी इसका जवाब दे सकता है। अगर मैं पूछता हूँ कि बोल दिया कि आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं बोलता हूँ कि नर्स, ये शब्द आपने सुना, तो आपके चेहरे के सामने किसकी इमेज आती है? मेल की आती है, फीमेल की आती है, मेल्स की आती है, विमेन्स की आती है, किसकी आती है? मर्द औरत किसकी इमेज आती है? फीमेल्स के। फीमेल्स की, एग्जैक्टली। लेकिन आप अगर कोई भी डिक्शनरी ओपन करके देखिए, नर्स का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो एक पेशेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है, उसकी देखभाल करता है, उसको मेडिकल में जो जो दिक्कतें हैं, जो जो परेशानी है, उसको सॉल्व करने के लिए उसको मदद करता है। लेकिन हमने काफी सारे सालों से यही देखा है कि जब हम लोग बोलते हैं कि नर्स, तो हमारे चेहरे के सामने सिर्फ औरत का चित्र आता है।
उसी तरह से अगर मैं किसान ये शब्द बोलता हूं तो आप सभी के सामने मैं पूरी शरीर लगाकर बात कर सकता हूँ, वेट लगाकर बात कर सकता हूँ। जब मैं किसान कहूंगा तो आपके चेहरे के सामने सिर्फ पुरुषों का ही चित्र आएगा, क्योंकि हमने हमारे पूरे समाज में बचपन से ही देखा है, फिल्मों में हो, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म में हो, किसी भी जगह आप देखिएगा कि किसान वो होता है जो पुरुष है। किसी औरत को हमने कभी भी किसानी करते हुए किसान के रूप में नहीं देखा है, क्योंकि जब हम लोग किसान कहते हैं तो हमारे दिमाग में भी वो पिक्चर आता है कि उसमें उसने एक धोती पहनी है, एक छोटा सा बनियान पहना है और माथे पे एक दुपट्टा लगाया है और उसके कंधों पर एक हल है। औरत को जब हमने किसान के रूप पर देखा है तो उसके हाथों में एक छोटा सा घमेला थोपा जाता है और उसके माथे पर घूंघट दिया जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे समाज में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है। अब जो एट्रीब्यूट्स की जब हम बात करते हैं फीमेल की, तो वो बहुत फ्रजाइल होती है, इमोशनल होती है, वो दिल से बहुत नाजुक होती है। और उनको कौन से इंटाइटलमेंट्स दिए जाते हैं कि एक तो फिनेंशियली, आर्थिक तौर पर वो डिपेंडेंट होती है। बचपन में वो अपने पिता पर, शादी के बाद अपने पति पर, और जब उसको बच्चे हो जाते तो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाती है। आप थोड़ा सा अपने घर में जाकर ये सवाल पूछिएगा अपने माता पिता जी से कि आपका घर किसके नाम पर है, उस घर का एड्रेस किसके नाम पर है। 100 में से केवल 2 से 3% ही लोगों को ये जवाब मिल जाएगा कि उनका घर या फिर उनके घर का एड्रेस उनके मम्मी के नाम पर है। उसका घर अगर मम्मी के नाम पर भी होगा तब भी उस घर का एड्रेस उनके पिताजी के नाम पर होता है। तो इस तरीके से इंटाइटलमेंट जो है वो हमारे समाज पर, आप मर्द हो कि औरत हो, इसके आधार पर डिसाइड किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ा भेदभाव है। अब उसी तरह से जब हम लोग मेल की बात करते हैं तो उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आपके आजू बाजू में किसी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर आप ध्यान दीजिएगा, उस पर सबसे ऊपर काम करने वाला आपको मर्द दिखाई देगा। ठीक है, डिफेंस में आप जो जो बड़ी बड़ी पोजीशंस है उसमें आपको मर्द दिखाई देंगे। ठीक है, हर बार ये कहा जाता है कि लड़के अग्रेसिव होते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं। और कौन सी रिस्क लेते हैं वो, तो कच्ची दारू पीना, विदाउट कंडोम के सेक्स करना, उसके बाद जोर से गाड़ियां चलाना। आपने कई बार देखा होगा लोकल में ट्रैवल करते समय कि एक हाथ बाहर निकलकर वो पूरा खुद को झोंक कर बाहर ट्रैवल करते। तो इस प्रकार की रिस्क टेकिंग, अग्रेशन जो होता है हम लोग मर्दों में देखते हैं, पुरुषों में देखते हैं, वो हमको सिखाया जाता है कि अगर इस तरह का लड़का नहीं है तो ये लड़का नहीं है। अब और एक एग्जांपल दूंगा कि लड़कों के ग्रुप में अगर कोई लड़का है जो गाली नहीं देता तो उस लड़के को उस ग्रुप में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसको हर बार ह्यूमिलेट किया जाता है। कैसा लड़का है, अभी ये गाली नहीं देता, कैसा लड़का है, ये शराब नहीं पीता। ठीक उसी तरह से लड़कियों के ग्रुप में अगर कोई लड़की ऐसी होती है कि जो गालियां देती है, जो शराब पीती है, तो उसको भी इस ग्रुप में नहीं रखा जाता, उसको बोला जाता है कि ये अच्छी लड़की नहीं है। ठीक है, सो कॉल्ड ये अच्छी लड़की नहीं है, ये अच्छा लड़का नहीं है। तो ये अच्छा लड़का लड़की हमारा समाज निर्धारित करता है, जो कि जिसको हम लोग जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब आगे तो अब आपके सामने एक पोस्टर है जिसमें हमारे सेक्स और मतलब मैं अभी मानकर चलता हूं कि आपको सेक्स और जेंडर में डिफरेंसेस समझ आए होंगे। ठीक, अब मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, मैं जो फील करता हूं ये मेरे दिमाग से मुझे फील होता है कि मेरे अगर मान लो मैं पुरुष हूं और मैं बॉडी में मेरे पीनस है और मुझे लगता है कि मैं लड़का हूं, तो ये मेरा जो मेरा मेन है, मतलब जिसको हम लोग पुरुष या फिर औरत कहते हैं, तो मैं मेरे दिमाग पर डिसाइड करता हूँ कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है, कि मैं लड़का हूँ कि मैं लड़की हूँ। अब उसके साथ ही मेरा अट्रैक्शन किस साइड पर है। अगर मैं लड़का हूँ और मुझे लड़की पसंद है
तो मुझे हेट्रोसेक्सुअल कहा जाएगा। कि एक लड़के को लड़की पसंद है और एक लड़की को लड़का पसंद है, सिर्फ लड़का पसंद है, तो इसको हम लोग हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं। तो जो ये अट्रैक्शन होता है ये हमारे दिल से आता है, हमको फील होता है यार कि ये लड़की मुझे पसंद है, किसी लड़की को लगता है कि ये लड़का मुझे पसंद है। जो अट्रैक्शन होता है ये हमारे दिल से आता है। अब उसके नीचे हम लोग देखेंगे ये सेक्स, जिस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन, कि बात करते समय मैं किस तरह से हाथों का इस्तेमाल करता हूँ, मैं हंसता किस प्रकार हूँ, मैं चलता किस प्रकार हूँ, मेरी जो फुटवेयर्स है, अगर कोई लड़का बड़ी हील वाली सैंडल पहन के अगर कॉलेज में आ जाए तो उसको टॉर्चर किया जाएगा, कि उसको बोला जाएगा कि ये कैसा लड़का है ये, मतलब लड़की जैसे कपड़े पहनता है रे, इस प्रकार की। ठीक। अब फुटवेयर डिजाइन है, आप क्या पहनते हो, कैसे रहते हो, ये सारी चीजें आपका एक्सप्रेशन है जो आपकी बाहरी बॉडी पर हमको दिखाई देता है। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे मुझे मैडम ने कहा था कि हम लोग थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर वगैरह क्या चीजें होती है। तो जैसे हमने इस आप पोस्टर पर देख पा रहे होंगे, तो जो जेंडर आइडेंटिटी है कि आप लड़का हो कि लड़की हो, बॉयज हो, मेन्स हो, ट्रांसजेंडर हो, ये आपकी आइडेंटिटी आपके दिमाग से डिसाइड होती है। आपको कॉन्शियसली लगता है कि मैं ये हूं। अब दूसरी चीज है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि मुझे किसके प्रति आकर्षण है, मुझे किसको देखकर फीलिंग्स आती है, मुझे किसको देखकर थोड़ा अट्रैक्टिव फील होता है कि यार ये लड़का अगर मेरा बॉयफ्रेंड हो, या फिर मुझे इस पर बहुत ज्यादा क्रश है, इसको हम लोग सेक्सुअल अट्रैक्शन कहते हैं, जो हमारे दिल से आती है, जो हमारी फीलिंग है। अब ये क्या होता है, तो पहला शब्द है उसपे लेस्बियन। अगर कोई लड़की दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसको लेस्बियन कहा जाता है। ठीक, एक लड़की दूसरे लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है सेक्सुअली तो उसको लेस्बियन कहा जाता है। एक लड़का दूसरे लड़के के तरफ देखकर, अगर मैं लड़का प्रवीण एक दूसरे लड़के को देखकर अगर मैं सेक्सुअली फील करता हूँ, रोमांटिक फील करता हूँ खुद को, तो मैं गे कहलाऊंगा। अब स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि एक पुरुष को केवल एक औरत पसंद है और एक औरत को केवल एक पुरुष पसंद है, इसको हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। एक औरत को पुरुष पसंद है और एक पुरुष को औरत पसंद है। अब बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि इनको लड़का भी पसंद है, लड़की भी पसंद है, औरत भी पसंद है और एक मर्द भी पसंद है। इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, दोनों लोग इनको पसंद होते हैं। अब एसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता सेक्सुअली। ठीक है, सेक्सुअली उसको ना लड़की की तरफ देखकर अट्रैक्टिव फील होता है, ना लड़के को देखकर, ना किसी ट्रांसजेंडर को देखकर, ना किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर। इसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल। और क्योर का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो अभी तक ये निर्धारित नहीं कर सका कि वो लड़का है कि लड़की है, उसको कौन पसंद है या फिर पसंद भी नहीं है, या फिर बहुत बार कि वो खुद नहीं इस बाइनरीज में खुद को रखना चाहता कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, लेस्बियन हूँ, गे हूँ, स्ट्रेट हूँ, बायसेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल हो। तो क्यूर एक प्रकार से एक ओपन अम्ब्रेला है जो अभी तक फाइंड आउट नहीं कर सका या फिर उसको किसी भी जेंडर आइडेंटिटी में खुद को नहीं रहना है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग और एक इंपॉर्टेंट चीज पर बात करेंगे। काफी सारे लोगों ने हिजड़ा ये शब्द सुना होगा, ठीक है, छक्का ये शब्द सुना होगा। तो ये शब्द क्यों है और कैसे है? तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो क्रोमोजोन है, तो अगर XX क्रोमोजोन है तो वो लड़की है और XY क्रोमोजोन है तो वो लड़का है, मेल फीमेल है। अब किसी के बॉडी में XXY या फिर YXX इस प्रकार के अगर क्रोमोजोन होते हैं तो हम उनको इंटरसेक्स कहते हैं। तो इंटरसेक्स का मतलब ये होता है कि बहुत बार जैसे अगर मैं लड़का हूं तो मैं पीनस लेकर पैदा होता हूं तो मैं सिर्फ लड़का कहलाऊंगा, मेल कहलाऊंगा। लेकिन अगर मेरी बॉडी में, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में अगर पीनस और वजाइना ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे इंटरसेक्स कहा जाएगा। और भारत में
1 लाख बच्चों के पीछे एक इंटरसेक्स बच्चा पैदा होता है। तो अगर मान लो कि आज के तारीख में मुंबई की जो पॉपुलेशन है, अगर वो 1 लाख है, तो एक बच्चा ऐसा है उसमें आज पैदा होने वाला, अगर आज 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें एक बच्चा ऐसा होगा जो इंटरसेक्स पैदा होगा, जिसके बॉडी में XY क्रोमोसोम होंगे, जिसको पीरियड्स भी आते होंगे, ठीक है, जिसके जो जेनिटल्स होंगे, जिसमें वजाइना भी होगी और जिसमें पीनस भी होगा। इसे कहते हैं इंटरसेक्स। अब इंटरसेक्स हो गया, अब ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं? तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सेक्स और जेंडर दोनों चीजें अलग है। मेरा जेंडर, मैं लड़का हूँ, मैं पीनस लेकर पैदा हुआ हूँ, मेरी दाढ़ी है, मेरी मूछें है, मैं शर्ट और पैंट पहनता हूँ, लेकिन मुझे लड़कियों जैसा फील होता है। मेरे भीतर से मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ, तो मैं अब उस प्रकार के कपड़े पहनता हूँ लड़का होने के बावजूद, कि मैं सैंडल पहनता हूँ, मुझे लिपस्टिक लगाना पसंद है, ठीक है, उसके बाद मुझे साड़ियाँ पहनना पसंद है, मुझे लड़कियों जैसा चलना पसंद है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांस का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांस होना, और जेंडर कि अगर एक लड़की वजाना लेकर पैदा होती है, उसको ब्रेस्ट है, उसको पीरियड्स आते हैं, लेकिन उसको लड़कों जैसे कपड़े पहनना पसंद है, उसको लड़कों जैसा रहना पसंद है, तो उसको पूरी की पूरी चीजें जो है जो लड़कों जैसी लगती है, तो वो खुद को उस जेंडर में ट्रांसफॉर्म करेंगे। फिर वो शर्ट पैंट पहनेंगे, उस तरह के कपड़े, उस तरह का पहराव पहनेंगे, वैसे बात करेंगे, वैसे रहना शुरू करेंगी। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांससेक्सुअल। अब ट्रांससेक्सुअल में बहुत बार अगर मैं पीनस लेकर पैदा होता हूँ और मुझे ट्रांसजेंडर होना है, मुझे अपना जेंडर मैंने ट्रांस तो कर लिया, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे मेरे ऑर्गन्स भी चेंज करने हैं। तो मैं पीनस निकाल कर वजाइना अपने बॉडी में लगा लेता हूँ, ब्रेस्ट इम्प्लांट कर लेता हूँ, तो मैं ट्रांससेक्सुअल कहलाऊंगा। यानी मेरे सेक्सुअल ऑर्गन्स को अगर मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया तो मैंने ट्रांससेक्सुअल कहलाऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर ट्रांसजेंडर ट्रांससेक्सुअल नहीं होता। जैसे आपने काफी जगह ट्रेन पर देखा होगा कि जो व्यक्ति लड़कियों जैसे कपड़े पहन के, साड़ियां पहन के आपसे कुछ मदद मांगते हैं, सिग्नल के सामने वो खड़े होकर आपसे पैसे वगैरह मांगते हैं, तो वो ट्रांसजेंडर है। अगर वो पूरी पुरुष बॉडी में पैदा होके लड़कियों जैसी बोलचाल करते हैं, बातचीत करते हैं, रहते हैं, उस तरह से चलते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा समाज जो बटा हुआ है स्त्री और पुरुष के आधार पर, लेकिन ये नेचुरली नहीं है, ये बायोलॉजिकली नहीं है। जैसे पुराने भारत में, एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में औरत को एक ही क्रोमोसोम था। उसके पास गर्भाशय था, उसके पास अंडाशय था, ओवरीज थी, वूम थी, उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो प्रमाण था वो बहुत कम था, उसके बॉडी में एस्ट्रोजन का जो प्रमाण था वो बहुत ज्यादा था, और वो औरत बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को दूध पिला सकती थी, ठीक है। ये प्राचीन भारत में होता था, एंशिएंट इंडिया में ये होता था। अब मॉडर्न इंडिया में ये होता है क्या? बिल्कुल होता है। XX क्रोमोसोम आज की औरत में भी है, उसको वोम है, ओवरीज है, उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो प्रमाण है वो भी कम है, एस्ट्रोजन ज्यादा है, और बच्चा पैदा होने के बाद वो औरत अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। इसका मतलब है कि बायोलॉजिकली हमारे बॉडी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन कल्चरली, सोशियोलॉजिकली, जेंडर के आधार पर बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। वो कौन से हम लोग देखेंगे। अब प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में औरत वोट नहीं कर सकती थी, वो मतदान नहीं कर सकती थी।
वो किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जज नहीं बन सकती थी, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में सरकारी पद पर काम नहीं कर सकती थी, ठीक है। वो ये खुद डिसाइड नहीं कर सकती थी कि उसको किसके साथ शादी करनी है कि नहीं करनी है। मोस्टली उस समय औरतें इलिटरेट हुआ करती थी और उनका जो लीगली वो अपने पिता या फिर अपने पति का उन पर लीगल वर्चस्व रहता था। एक तो वो किसी की बेटी रहती थी या फिर किसी की पत्नी रह सकती थी। अब एंशिएंट, सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर मॉडर्न इंडिया लिखना था मुझे, एंशिएंट इंडिया की जगह। अब ये मॉडर्न इंडिया में ये औरत वोट कर सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन सकती है, ठीक, वो गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी काम कर सकते, जैसे आपके कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, एचओडीज, काफी सारे टीचर्स लोग ये उस ऑफिस में काम करते हैं। अब आज की औरत ये डिसाइड कर सकती है कि उसको किसके साथ शादी करनी है कि नहीं करनी है, कितनी उम्र तक करनी है, कितनी उम्र के बाद करनी है, ये सारी चीजें वो कर सकती है। जैसे कि जब तक महात्मा फुले ने औरतों के लिए स्कूल शुरू नहीं की थी, तब तक लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। अब उस समय अगर कोई पुरुष, कोई बाप अपने बेटी को अगर स्कूल भेजता हो तो उस पर गालियां बरसाई जाती थी, उसको टॉन्ट किया जाता था, उसको मारा जाता था। इवन कि सावित्रीबाई फुले को भी लोगों ने पत्थर फेंक कर मारे, ठीक है, गोबर फेंक कर मारा था। अब उस समय लड़कियों को पढ़ाना मतलब पाप माना जाता था, लेकिन आज का बाप अगर अपनी लड़कियों को पढ़ाएगा नहीं तो आज के समय में वो पाप माना जाएगा, ठीक है। तो उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, लेकिन इस समय न पढ़ाना पाप माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जेंडर समय के साथ बदलता है, वो जैसे कल था वो आज उस तरह से नहीं होगा। अब वो लीगली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो किसी के छत्र छाया में नहीं है, वो अकेले रह सकती है, ठीक। अब आपके स्क्रीन पर 2 पोस्टर्स हो गए। कोई बता सकता है मुझे अनम्यूट करके फैकल्टी में से कोई कि आप इन दोनों में से किसे पहचानते हो, किसे जानते हो, आपको मालूम है कौन है ये व्यक्ति? Isaac Newton and Mr. Obama. ओके, सो ये जो आपके लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड पर है, वो है प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बराक ओबामा। अभी ये आपके लेफ्ट साइड में जो व्यक्ति है उसका नाम है लुई द 14th, 14वां लुई। तो एक फ्रेंच का राजा हुआ करता था 14वां लुई, ये उसका ये पिक्चर है। अब इस दोनों पिक्चर में एक सबसे बड़ी सिमिलरिटीज है कि 2016 तक बराक ओबामा इस पृथ्वी पर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है। अब ये जो 14वां लुई था वो 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में सबसे पावरफुल पुरुष था, सबसे पावरफुल मर्द माना जाता था। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये दोनों अपने अपने समय के सबसे पावरफुल लोग थे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें अभी कि ये 14वां लुई के जो बाल है वो बड़े हैं, ठीक है। उसने पैरों में स्टॉकिंग्स पहने हैं, जिसको हम लोग लैगिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। उसने सैंडल्स पहनी है पैरों में। उसके शरीर पर आप देखोगे एक बड़ा सा गाउन है, और उसके खड़े रहने का तरीका जो है वो एक औरत के खड़े रहने का तरीका है, और उसके पास एक तलवार भी लटकी हुई है। उस समय 18th सेंचुरी में इस तरह का जो पुरुष होता था उसको सबसे ज्यादा पावरफुल पुरुष माना जाता था। अगर कोई राजा है और उसने इस प्रकार खुद को सजाया नहीं, ठीक है, या फिर अगर मुझे दिखाना है कि मैं कितना पावरफुल हूं, तो मुझे इस तरह के कपड़े पहनना है, उस तरह से खड़े रहना है, और इसी पोजीशन में मुझे
खुद को रखना है। अब आज अगर कोई बराक ओबामा इस तरह के कपड़े पहनेगा, लुई द 14 जैसा, तो लोग क्या रिएक्ट करेंगे? क्या कर सकते लोग? मतलब हंसना शुरू कर देंगे, बोल देंगे ये कैसा राजा है, किस तरह के गंदे कपड़े पहनना है। तो दोनों पावरफुल व्यक्ति अपने अपने समय में पावरफुल थे, लेकिन उनका पूरा पहराव, ठीक है। अब आप बराक ओबामा की पिक्चर देखिए, उसने सूट पहना हुआ है, शूज पहने हुए हैं, ठीक है। उसके खड़े रहने का आप तरीका देखिए, जिसको हम लोग सो कॉल्ड जेंटलमैन कहते हैं, ठीक। ये दोनों चीजें अपने आप में अलग है, जो समय के साथ आपका जेंडर बदलता गया, ठीक। अब ये पिक्चर है, इसमें से कोई बता सकता है मुझे कि ये किसकी पिक्चर से दोनों? कोई भी अनम्यूट कर बात कर सकता है। हेलो, ओके। तो ये जो आपके लेफ्ट साइड में है, ये है ऑस्कर वाइल्ड और है युवाल नोआ हरारी। अब इस दोनों व्यक्ति में एक मेजर डिफरेंस, मेजर सिमिलरिटीज है कि ये दोनों गे है, लेकिन ऑस्कर वाइल्ड अपने पार्टनर के साथ शादी नहीं कर सकता था, और युवाल नोआ हरारी अपने पार्टनर के साथ उसने शादी कर ली। तो ये सारी चीजें समय के साथ बदल दी गई। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमने देखा है कि डिफरेंसेस है, ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इनइक्वेलिटी हमारे समाज में है। जैसे इस स्लाइड पर आप देख सकते हो कि पूरे भारत में जो है कि केवल 46% पंचायती राज सीट जो है वो औरत के पास है। हमारी जो लोकसभा है, ठीक है, उसमें केवल 11% ही औरतें हैं, ठीक। इस प्रकार की इनइक्वेलिटी हमारे समाज में हम देखते हैं जगह जगह पर काफी। जैसे आपके कॉलेज में देखिए, आपके सोसाइटी में देखिए कि इस प्रकार की इनइक्वेलिटी है। अब दूसरी आप इस स्लाइड पर देख सकते हो कि जेंडर गैप किस प्रकार है, जेंडर इनइक्वेलिटीज क्या है। हमारा जो देश है वो 125th के रैंक पर इनइक्वेलिटी में। सबसे ज्यादा चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है, ठीक। लिटरेसी का अगर प्रमाण देखोगे आप तो 65% ही लिटरेसी है वुमेन्स के पास, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि जेंडर इक्विटी बेसिकली क्या है, इस पर बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारा, जैसे हमने अभी देखा है कि हमारे समाज में जेंडर के आधार पर इनइक्वेलिटीज है, ठीक है, असमानताएं बनी हुई है, बहुत ज्यादा भेदभाव है। तो इक्वेलिटी और इक्विटी में क्या फर्क है? इक्विलिटी का मतलब ये होता है कि सबको एक जैसी चीजें बांट देना। अगर मान लो कि मेरे पास 5 रुपए है और 5 लोग हैं, तो सबको 1-1 रुपया देना, इसका मतलब होता है समानता, इक्विलिटी। सबको 1-1 रुपया दिया जाएगा। अब इक्विटी का मतलब ये होता है कि हमारा समाज ऑलरेडी इनइक्वल है, असमानताएं बनी हुई है, और इसमें जिस प्रकार की असमानता है, और अगर हमको समानता लानी है तो हम लोग इक्विलिटी का उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि 5 लोगों को अगर हमको 5 रुपए हमारे पास है और अगर हमको 5 लोगों में वो बांटने हैं, जिसमें से 2 लोगों के पास ऑलरेडी पैसे है, तो हमको उन 3 लोगों को पैसे देने होंगे जिनके पास एक भी रुपया नहीं है। इसको कहा जाता है इक्विटी। ये होती है इक्विटी। अब इक्विटी और इक्विलिटी में ये मेजर डिफरेंस है। अब हमको जेंडर इक्विटी क्यों लानी है हमारे समाज में? तो हमारे समाज के अलग अलग जगह पर, वर्किंग सेक्टर हो, हमारी एजुकेशन सिस्टम हो, इसमें बहुत बड़ा भेदभाव बन चुका है, बहुत बड़े डिफरेंसेस है। और इन डिफरेंसेस को कम करने के लिए हमको एक इक्विलिटी, एक समानता बनानी पड़ेगी। और ये समानता किस माध्यम से बनेगी? तो जैसे कि रिजर्वेशन की बात करते हैं जब हम लोग औरतों के लिए, कि उनको जॉब्स में रिजर्वेशंस मिलनी चाहिए,
हमारी लोकसभा में, हमारी विधानसभा में इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जब रिजर्वेशन मिलेगा तो वहां से रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, और जब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि हम लोग वो जो खाली पैच बना हुआ है, जो खाली जगह है, वो खाली जगह भरकर हम निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अलग अलग कॉलेजेस है, ऐसे कॉलेजेस ओपन करना, इंस्टीट्यूशंस ओपन करना, और उसमें लड़कियों के लिए योग्य रिप्रेजेंटेशन बनाकर रखना। ऐसे अनेक उपयोग है जिसके माध्यम से हम लोग हमारे समाज में जो एक इनइक्वलिटी बन चुकी है उसको इक्वल समाज बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप में से अगर कोई सवाल अगर पूछे तो उस पर ज्यादा बात करनी बेहतर होगी। हेलो। Yeah. Hello. हाँ मैम। I'll just put request to the students that hello students, you have an opportunity to get your queries solved related gender equity. So you can post your like question in a chat box, and I will read in front of our speaker for you. So students, if you have any query in this lecture, you can write it in a chat box and post it. Okay, sir. If I'll receive any question, I'll just read it for you, sir. यस यस। Yes, yes. सो बेसिकली मैंने जेंडर के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैंने बोली है, और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ओपन प्लेटफॉर्म बन जाए जिस पर बात हो सके। ये वन वे इंटरेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट और मतलब इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगा कि जेंडर इक्विटी पर बात हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं इसमें बने हुए। हमने हर बार सुना है कि सर जैसे लोकल में लड़कियों के लिए रिजर्वेशन होता है, वुमेन्स का एक डब्बा होता है, फिर भी वो जनरल के डब्बे में क्यों चढ़ते हैं। तो इस प्रकार के जो काफी बुनियादी सवाल है वो अगर सामने से स्टूडेंट पूछते हैं तो और इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। ज्योति ने हाथ खड़ा किया है। Hello, Jyoti. You need to type your question in chat box. या फिर वो अनम्यूट कर कर भी पूछ सकते हैं। Akshata, can we We unmute? can have question answer session after the lecture, please. We can नहीं have सर। question answer session after the lecture, please. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे ये कहना है कि ये जो जेंडर इक्विटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो काफी सारी बुनियादी चीजें हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि क्यों रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए है और मेंस के लिए नहीं है, इस पर अगर बात हो तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। Hello, Subhashri. Yes, Chetna. Is it possible to request IT team to unmute a student who is raising Yes. hand? Yes, that's fine. Akshata? That way, matlab, we can have an interactive Yes. session. Yeah. Yes. Akshata, can I request you to unmute only those students who have raised their hand? And we will take one or two questions here and one or two questions at the end so that we can keep it more balanced. Student, anyone has raised your hand? Anyone who would like to ask regarding what sort is right now interacting? So right now there is nobody who has raised the hand, so you can go ahead, and once you finish with the slides, sir, then we will take up the question answers, sir.
ओके, सो इसमें हाउ जेंडर ऑपरेट्स एज अ सिस्टम, क्या जो स्लाइड है, तो हमने हमारे फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन और गवर्नेंस और मीडिया, ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जहां पर जेंडर इनइक्वलिटीज है। ठीक है, अब इक्विटीज किस तरह से हमको लानी है, फिर हम लोग ला सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। सो फैमिली में ये होता है कि घर में खाना कौन बनाएगा, ठीक है, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, उस पर कपड़े कौन पहनेगा, सबसे आखिरी में कौन खाना खाएगा, सबसे पहले कौन खाना खाएगा, के साथ ही जिस प्रकार का फूड हमारे घर में सर्व किया जाता है। तो जब जब नॉनवेज आता है, हमने देखा है कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन और विटामिन होता है, इस प्रकार का फूड जनरली हमारे लड़कों को हम लोग सर्व करते हैं। तो ये हमारी फैमिली इंस्टीट्यूशन में हमने देखा है। रिलीजन एक सिस्टम है जिसपे आपने देखा होगा कि मैरिज इंस्टीट्यूशन में शादी के बाद सिर्फ लड़की एक ऐसी व्यक्ति होती है, पहला नाम, सेकंड और थर्ड, ये तीनों नेम उनको चेंज करने पड़ते हैं। काफी सारी जो फॉर्मेलिटीज है एक औरत को ही फॉलो करनी पड़ती है कि शादी के बाद उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, उसको सारी चीजें बैक डोर रखनी पड़ती है कि इसके बाद उसका उस घर में कुछ। इवन हमारा जो रिलीजन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ और रिलीजन, मतलब बात कर लीजिए, आप बुद्धिज्म की बात कर लीजिए, ये सारे के सारे रिलीजन है, ये रिलीजन पुरुषों ने बनाए हुए हैं। और हमने काफी लंबा स्ट्रगल देखा है कि जिसमें औरत को एक प्रवेश करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके पीछे काफी सारी कहानियां, काफी सारे मिथ गड़े हुए हैं। तो इक्विटी लाने के लिए हमको ये डोर्स जो है वो ओपन करने पड़ेंगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर वगैरह वगैरह, वो इस मंदिर में किसी भी धर्म का पालन अपनी इच्छा और मर्जी अनुसार कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमने देखा है, जो लोग मराठी में बात करते हैं तो हमारा जो ग्रामर है वो भी जेंडर्ड ग्रामर है। जैसे कि ती नदी आहे, तो समुद्र आहे, ती वाटी आहे, तो कटोरा आहे। तो जैसे जो चीजें छोटी है, ये जैसे नदी एक जगह से शुरू होती है, दूसरी जगह खत्म होती है, ठीक, तो उसको हमने जो उसका जो जेंडर है वो विमेन जेंडर में हमने उसको करते हैं, वो लड़की, मतलब जिसको हम लोग स्त्रीलिंगी कहते हैं। और जो चीजें सबसे बड़ी है, जो अमाप है, उसको हमने पुल्लिंग के साथ जोड़ दिया, पुरुष लिंग के साथ जोड़ दिया है। जैसे और एक एग्जांपल कि हम लोग हर बार ये कहते हैं कि ती बस आली, तो ट्रक आला। इसमें मेजर चीज है कि माल जो होता है, मतलब एक सामान ढोने की जो क्षमता होती है वो बस में कम होती है और एक ट्रक में ज्यादा होती है। इसलिए हमने उसको जेंडर के आधार पर देखा है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। तो इस प्रकार का जो एजुकेशन है, जो ऑलरेडी इनइक्वल है, इसमें इक्विटी लाने के लिए हमको जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन सिस्टम के तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे सीबीएसई की एक किताब आप अगर देख पाते हो तो उसमें प्रोफेशन के नाम है और उसके सामने जो इमेजेस है मेल और फीमेल की, तो टीचर, उसके बाद डॉक्टर, उसमें भी गायनोलॉजिस्ट, नर्स, इन प्रोफेशन के सामने वुमेन्स की पिक्चर्स है। और इसके अलावा जैसे फार्मर हो गया, इंजीनियर हो गया, ठीक है, पायलट हो गया, लोको पायलट हो गया, इसके सामने मेंस के पिक्चर है। तो इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे समाज में इनइक्वलिटी को ज्यादा प्रमोट करता है और इक्वलिटी लाने के लिए हमें इसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करने पड़ेंगे। इसके साथ ही अगर कोई लड़का मान लो कि क्राफ्ट का एजुकेशन लेना पसंद करता है, जैसे कहा गया था कि जैसे शुरुआत में कि साबुन बनाना, शैम्पू बनाना, न्यूट्रिशंस बनाना, इस प्रकार के कोर्सेस, काफी सारे कोर्सेस लड़कियों के लिए शुरू कर चुके हैं। लेकिन क्या ये कोर्सेस सिमिलरली लड़कों के लिए है या नहीं है, इस पर हमको बात करनी पड़ेगी। अब हमारे गवर्नेंस सिस्टम का हम लोग बात करते हैं, तो जो पुरोगामी महाराष्ट्र की हम लोग बात करते हैं, इसमें केवल 48 लोकसभा जो सीट्स है उसमें से केवल
4 से 5 रिप्रेजेंटेटिव जो है संसद में वो केवल महिला है। और ये जो रेशो है इसको इक्वल करने के लिए हमको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जैसे बहुत महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत है। अब ये रिजर्वेशन जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है, गांव लेवल पर है, ग्राम पंचायत लेवल पर है, लेकिन वहां पर भी हम लोग इनइक्वालिटीज देखते हैं। मान लो कि अगर कोई औरत के लिए वो सीट रिजर्व है, फिर भी उस गांव का जो मुखिया होता है, जो प्रमुख होता है, वो पुरुष ही होता है, वो औरत केवल वहां पर चुन कर आती है। उसके बाद सारी की सारी सिस्टम जो है वो रूल बाय मेन होती है। तो इस इनइक्वालिटी को हमको इक्वल करने के लिए, इक्विटी लाने के लिए बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे और उस कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ बनाकर काम नहीं होगा, तो उन कानून को कॉन्शियसली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक, अब हमारी जुडिशियल सिस्टम देखिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में 13 लोगों का जो बेंच है, उस 13 लोगों के बेंच में सिर्फ एक इंदु मल्होत्रा नाम की विमेन है। 13 मतलब 13 में से सिर्फ एक औरत, मतलब 12 और 1, इतना बड़ा डिफरेंस है। और इस जुडिशियल सिस्टम को पावरफुल करने के लिए हमको इस इनइक्वालिटी को इक्वेट करने के लिए वहां पर महत्वपूर्ण कानून और बदलाव करने की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीडिया, और इस मीडिया में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है कि जिस पर हम लोग घंटों तक बात कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, कि जब जब किसी बॉडी वॉश का, ठीक है, किसी रेजर का, किसी डिओ स्प्रे का एडवर्टाइजमेंट आता है, तो वो लड़का अपने बॉडी पर डिओ स्प्रे परफ्यूम कर लेता है, मतलब स्प्रे कर लेता है, और उसके आजू बाजू में लड़कियां आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि केवल एक डिओ स्प्रे के आधार पर ही लड़की आपके प्रेम में पड़ जाती है, उसको जिंदगी में इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हमारे मीडिया के थ्रू होता है। आप काफी सारे गाने लीजिए, जैसे एक काफी बहुत महत्वपूर्ण गाना हमने सुना है, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। शायद ये डर पिक्चर का गाना होगा, और उस गाने में आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार उस लड़की की बिना सहमति के, उसका कंसेंट के बिना, एक जो एक्टर है वो कहता है कि तू सिर्फ मेरी है, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। ऐसे अनेक गाने हैं कि बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा मैं तेरे साथ गंदी बात, मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात। इस प्रकार के गाने, इस प्रकार के फिल्में, इस प्रकार के आइटम सॉन्ग कहीं ना कहीं इतनी बड़ी इनइक्वालिटी बढ़ा देता है, और इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए हमको इक्विटी पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कीर्ति कॉलेज एक वन ऑफ द कॉलेज है जो हर बार अपने स्ट्रीट प्ले में जेंडर वाले इश्यूज पर बात करता है। मुलगी झाली हो जो स्ट्रीट प्ले हमने देखा था। तो इस प्रकार का परफॉर्मेंस, इस प्रकार का मीडिया जो है वो हमको दिन ब दिन जनरेट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इस इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्विट सोसाइटी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो मोस्टली स्लाइड थी वो मैंने कवर कर ली है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस फ्लोर को ओपन करके बात करेंगे। Yes, we have unmuted for students now. So Chetna, you can take the questions, or students can raise your hand and can unmute themselves and can ask the question. Hello students, you can type your question in a chat box. If you have any query, it's an opportunity for you to get it solved. You can unmute yourself. Aham, you wanted to ask something? You can unmute yourself and can ask.
Yes, ma'am. Actually, my question is a bit irrelevant to the topic, so I think I'll keep it to myself for now. Hello, ma'am. हाँ, say. Hello, ma'am. Can you hear me? Yes, you are audible. Yeah, even from now, the equalities are going on. The now even the stop song means the other people was aborting the abortion going on about the girl child. They was aborting the girl child. They don't want to keep the girl child. Still, it has stopped it, but still the women do not get the full justice like about to what was the going on, the inequalities and the bad things was happening in society. Sir, you would like to answer her? Hello, sir. Hello, sir. Hello. Yeah, sir. I'm Dr. Professor Jyoti Munde. Yes, ma'am. हमारे जो स्पेशली आपका लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमारे अभी बॉय स्टूडेंट तो सुन रहे हैं, वो तो बदल रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में हमारे गर्ल स्टूडेंट को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसा विचार करना चाहिए, इस पर थोड़ा आप जरा ज्यादा बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि जेंडर ये मतलब इनइक्वालिटी तो है ही, ये सबको पता है। आपके लेक्चर में से उनको और पता चलेगा कि कैसे इनइक्वालिटी है और कैसे सटली आगे परपेचुएट होती है, लेकिन उनको कैसे सावध रहना चाहिए इस सिलसिले में और आगे अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके बारे में जरा बोलेंगे, क्योंकि जैसे आपने जो मीडिया का एग्जांपल दिया, वैसे बॉलीवुड फिल्म्स वगैरह तो ये सब परपेचुएट करती ही है, तो उनमें से देखने के लिए उनको कैसे सजग रहना चाहिए, इस पर आप जरा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। ओवर। जी, थैंक यू सो मच मैम। सो काफी इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, और क्या कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप में काफी सारे फॉरवर्ड्स आते हैं, इतने भद्दे भद्दे गंदे गंदे जोक्स आते हैं कि जिसकी कोई भी सेंसिबिलिटी हमको होती नहीं है, ना समझ होती है। तो एक पिक्चर है जिस पर एक औरत स्टेशन के सामने खड़ी है, और मतलब प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, और वहां से ट्रेन आ रही है, और उस औरत ने सामने हाथ किया है, जैसे जनरली हम लोग हाथ सामने करते हैं बस या फिर टैक्सी को रोकने के लिए, उस तरह से उस औरत ने वो हाथ सामने किया है ट्रेन को रोकने के लिए। अब ये पिक्चर आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म आपने कई बार देखा होगा। हर बार हम कहीं ना कहीं ऐसे भद्दे जो जोक्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग शेयर करते हैं बिना सोचे समझे कि क्या उस औरत को इतना भी नहीं समझता होगा कि ट्रेन यहाँ हाथ दिखाकर नहीं रुकती। शायद वो किसी और को देखकर वो हाथ दिखा रही होंगी, लेकिन इस तरह की फोटो क्लिक करके हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि औरत तो पूरी मूर्ख होती है, उसको कुछ नहीं समझता, उसको केवल गहने समझते हैं, ठीक है, उसको केवल साड़ी खरीदनी है, उसको केवल शॉपिंग करना है, इसके अलावा उसकी जिंदगी में दूसरी कोई चीजें नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज के तारीख में हम लोग कर सकते हैं कि इस तरह के फॉरवर्ड्स को रोकना, इस तरह के जोक्स को शेयर ना करना। काफी लड़कों और लड़कियों के काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर पोर्न मूवीज को शेयर किया जाता है। अब इतने सारे कंटेंट, मतलब विदाउट कंसेंट आपने किसी के प्राइवेट मूवमेंट को कैप्चर कर लिया, और वो कैप्चर करने के बाद आपने ऐसे वेबसाइट पर, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना भी अपने आप में बहुत गलत बात है। तो छोटी छोटी चीजें हम लोग शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उस पर, कि हमारे घर से उसकी शुरुआत कर सकते हैं कि कामों का जो बंटवारा होता है, या फिर हम लोग ऐसे व्हाट्सएप वाली चीजों को रोक सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि लड़के तो बदल रहे हैं, लेकिन लड़कियों को कैसे सजग रहना है,
तो मुझे लगता है कि दोनों को, ये इरिस्पेक्टिव वो लड़का है कि लड़की है वो मैटर नहीं करता, लेकिन हर किसी को किसी भी जेंडर के व्यक्ति को लेकर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टिव होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, ट्रांसजेंडर हो, वो किसी भी LGBTIQ कम्युनिटी का मेंबर, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके इमोशंस या फिर उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और साथ ही खुद को सजग रखने के लिए, मतलब मैं तो कहूंगा कि जैसे सोशल मीडिया वाला जो प्लेटफॉर्म है, जैसे हम लोग बिना दिक्कत अपनी काफी सारी फोटोज शेयर कर लेते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, या दूसरे इंस्टाग्राम जैसे चीजों पर। तो पहली चीज तो आपकी प्राइवेसी है वो चीजें, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो आपने खुद मेंटेन करनी चाहिए। हमने देखा है कि काफी सारी न्यूड फोटोज जो है वो शेयर की जाती है, और वो उसके बाद आपको अलग अलग पोर्न मूवीज के वेबसाइट पर वो फोटोज देखने मिलती है। तो प्लीज आप ये इस तरह की फोटोज शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी जैसे हम लोग सुनते आए और देखते आ रहे कि व्हाट्सएप, फेसबुक पर आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, आपका मैसेज, आपके पिक्चर्स, आपके वीडियोस तीसरा कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और कोई सवाल? Thank you, Jyoti ma'am, for Hello. enlightening. Hello. हाँ सर। आई एम ऑडिबल? सर मेरा आवाज आ रहा? जी हाँ, जी आ रही है आवाज। आई एम डॉक्टर मनोहर. हाँ सर। Regarding gender inequality, it is not a problem of India, but it is the overall problems of whole world. Right. We can consider to whole world. But in Yes. India is very high gender inequality. Yes, sir. Because of, I think, Dharma's rule regulation also, they neglect the ladies or women regarding their right. Dr. Baba Sahib Ambedkar also wrote Hindu Code Bill and given right. Your constitution principles means 15 article also given freedom and right to gender equity, to increase the gender equity in India. But what Right. happened, today's situation also find out very high gender inequality in Indian situation in India. India ranking regarding SDI 135 rank, but value of gender inequality is 0.563 in today's situation in India. What to do to create gender equity in India? What to do? Which measure can reduce the gender inequality in India? It is my question. मैंने क्या करना चाहिए? बाबा साहब ने घटना लिखी, उसमें भी को हिंदू कोड बिल लिखा, उनको राइट दिया, आर्टिकल 15 में भी उनको सब राइट दिया, तो भी जेंडर इनइक्वालिटी अपना उतना रिड्यूस नहीं हो रही, यानी जेंडर इक्विटी बढ़ रही नहीं। तो उसके वास्ते अपन को क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा मेजर कि ये जेंडर इक्विटी बढ़ेगी इंडिया में? बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, और उसका जवाब यस और नो में तो नहीं आ सकता, या फिर बहुत शॉर्ट जवाब नहीं उसका। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको समझनी पड़ेगी कि हमारे देश में पिछले 2500 सालों से, जहां तक हमको हमारा इतिहास मालूम है, तो पिछले 2500 सालों से ये पूरी सिस्टम एज इट इज हमारे समाज में चल रही है। कि आप वेदास की बात कर लीजिए, आप किसी भी, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे रिलीजन से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो गौतम बुद्ध का एक जो अनुयायी था जिसका नाम था आनंद, और गौतम बुद्ध को के संघ में काफी सारे लोग शामिल होते थे, और मोस्टली वो पुरुष होते थे। तो जब महामाया, गौतम बुद्ध की जो मौसी माँ थी, उसने कहा कि मुझे तुम्हारे संघ में शामिल होना है, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये हो नहीं सकता, ये केवल जो संघ है वो केवल पुरुषों के लिए है। तो इस पर काफी सारी बातचीत हुई, चर्चा हुई, बहस हुई। आखिरी में आनंद जो उनका अनुयायी था, आनंद ने ये चीज उनको समझा कर बताई है कि संघ में औरतें कितनी आवश्यक है, क्यों जरूरी है। तो ये तो सबसे क्या कह सकते हैं कि शुरुआत से ही अगर हम लोग देखेंगे तो बुद्ध भी
औरतों के काफी सारे अधिकारों को मानता था, लेकिन संघ में शामिल करने के लिए वो राजी नहीं था। तो हमारे धर्म की अगर हम लोग मीमांसा करेंगे, उसकी चिकित्सा करेंगे, तो वहां से उसके अनेक उपाय हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल समझ ये है कि हमारे घर से हम लोग इन चीजों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। तो मेरे घर में अगर लड़की पैदा होती है, तो तभी से मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहिए कि मैं उसको किस प्रकार जेंडर इक्वल रख सकूं। जैसे कि अगर बचपन से ही हमने उसको खिलौने, हम लोग दोनों खिलौने दे सकते हैं, लड़के जो खेलते हैं, लड़कियां जो खेलती है, दोनों चीजें। उसके लिए कपड़े उस प्रकार रख सकते हैं कि वो अपने हिसाब से चॉइस कर सके। उसको जब जब हम लोग लोगों के सामने लेकर जाते हैं, तो उसको हम लोग किस प्रकार ट्रीट करते हैं। चल बेटा, अच्छा लड़की यहाँ पर नहीं नाचती, अच्छा लड़की इस प्रकार नहीं चलती। सिर्फ ये लड़कियों के साथ नहीं होता, तो लड़कों के साथ भी होता है। बचपन से अगर कोई लड़का रोना शुरू कर देता है, तो बोलते हैं कि कैसा लड़का है। मर्द रोते नहीं, लड़के रोते नहीं। हंसना और रोना ही हमारे इमोशंस है। अगर हम हमारे इमोशंस को अगर इमोशंस के तौर पर देखेंगे, तो वो उसमें एक बदलाव होगा और एक अच्छी चीजें आएगी। लेकिन हमारे इमोशंस को हम लोग इमोशंस के तौर पर नहीं देखते, तो लड़के और लड़कियों की तरफ देखते हैं। हमारी हिंदी फिल्मों की एक बहुत पॉपुलर सीन है ये, कि एक घर में एक मर्द की मृत्यु हो चुकी है, एक पुरुष मर चुका है और उसकी चिता जल रही है। अब उसकी जो राइड होती है, लास्ट राइड, जिसको जब उसको लेकर जाते हैं, तो उसकी जो अर्थी होती है, उसको अर्थी के सामने जो एक छोटा सा घड़ा पकड़ने वाला जो व्यक्ति होता है, हमने देखा है कि वो लड़का ही होता है। ठीक, उसको चिता दे जाने के बाद पीछे से कोई एक व्यक्ति आता है और उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि बेटा, आज से इस घर की जिम्मेदारी तुमको संभालनी है। ठीक है, ये वर्ड होते हैं। अब उस छोटे से लड़के को अपना पैंट नहीं संभाला जाता और हम लोग कहते हैं कि उसको जिम्मेदारी संभालनी है। तो जिम्मेदारी हम लोग लड़कों और लड़की इन दोनों के भीतर नहीं बांट सकते। हमको व्यक्ति को देना पड़ेगा कि हाँ, ये काम तू कर ले बेटा, ये काम तू कर सकता है। तो जब जब हमारे घर से इसकी शुरुआत होती है, तो हमको कॉन्शियसली डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि हमको क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। हमारा एजुकेशन हो, जैसे अगर हमारे घर का कोई लड़का भरतनाट्यम सीखना चाहता है, तो हमको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि डांस डांस है, वो परफॉर्मेंस है, उसमें जेंडर नहीं है, वो कोई भी सीख सकता है। ठीक, तो ये बुनियादी चीजें हमको करनी पड़ेगी, तब जाकर बदलाव होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो काफी सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस है, लेकिन हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। अब कानूनी तौर पर तो लिखा हुआ है कि लड़की अपना नाम नहीं बदल सकती, लेकिन हमने देखा है कि शादी के दूसरे दिन लड़का और लड़की दोनों को नहाया जाता है और वो लड़का उसको वहां से उठाकर, मतलब बाहर से उठाकर, जो उनका पूजा घर होता है वहां तक लेकर जाता है, और उस लड़के को उस लड़की का नाम रखना पड़ता है कि आज से तुम्हारा नाम अमुक अमुक रहेगा। ठीक है, लड़कों का नाम नहीं बदलता। तो ये बुनियादी जो चीजें है, जहां से हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन धीरे 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 बढ़ते जाता है, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की हमको जरूरत है। We will go for one last question for today's. Thank you, Pote sir. Given detailed explanation. Thank you. Thank you, sir. Discussion between Buddha and Anand. Lastly, Buddha can also given equal right to women also in India. Firstly, thank you given answer to you my question, sir. Thank you, sir. बढ़िया आंसर दिया आपने. Any one last question will be taking up. So, would anyone like to ask? I think now we can. I think Harshad sir can take over now. अच्छा, एक चीज शुभश्री मैडम, मुझे एक चीज बोलनी थी. Yes, sir. You can switch on your camera if you want. ओके, सो मुझे शेयरिंग स्टॉप करना पड़ेगा. Okay.
मेरा कैमरा ऑन It's okay, नहीं you हुआ can है। speak. It's okay, you can speak. या शायद अहम ने हाथ खड़ा किया है। Do you want to ask? Yes, ma'am. Yes, please I can ask. speak after sir if sir wants to speak first. No, नहीं नहीं, should आप I बोलिए we जस्ट are at the ये। fag end, and we now Harshad sir will be proposing vote of thanks. So that is why I asked Okay, for just last one question. yes, ma'am. Since gender equality and stuff is being talked about, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे मेल और फीमेल में लोग डिफरेंशिएट करते हैं रिगार्डिंग देयर क्लोथिंग एंड वुमेन एंड वुमेन में भी होता है जैसे इफ यू वॉच सम आंटी एंड शी वेयर्स द साड़ी so that auntie might be revealing a lot of her body than some girl who's wearing a just little crop top. And then that auntie will have the audacity to say that look at her, she's revealing so much, and she would not even have a look at her own waist. And what I राइट want to point out is this thing. This is not just in public, even colleges and stuff. There are moments where I'm not saying that they do it or any teacher is wrong or anything rules about. But if someone wants to wear something which might not be that wrong, but still everyone points out at her and she has to change her style or just quit just because the mentality of the person opposite is not that equal to the person wearing. तो राइट ऐसा राइट ऐसा क्यों होता है बिकॉज सपोज इफ यू आर अ मेल एंड यू आर इन पब्लिक प्लेस एंड थिंग्स गेट रियली हॉट मतलब टेम्परेचर क्लाइमेट एंड ऑल अ मेल हैज ऑल द फ्रीडम कि वो अपना टी शर्ट निकाल दे एंड ही कैन शो ऑफ हिज एब्स और वट एवर हिज बॉडी इज बट सेम थिंग अ राइट female does not cannot do. I mean, if she wants to, even if she wants to, she won't be allowed to. She has to go all through that suffering just because समाज ऐसा है, समाज वैसा है. तो आई जस्ट वांट कि वो फ्रीडम उनको कब मिलेगा. ये जो इक्वालिटी का बात होता है, नॉट जस्ट दिस थिंग बट और भी बहुत सी चीजें हैं. तो व्हेन व्हेन कैन वी सी दैट हैपनिंग कि खुद के फ्रीडम के साथ डेमोक्रेटिक नेशन दिस से बट वैसा ओके होना भी राइट राइट. सो अब ये देखिए, अगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में एक शॉल है, ठीक है. अब ये शॉल जो है मैंने इस तरह से ओढ़ी है. आपको क्या लगता है अहम कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ? सर हाउ एम आई सपोज टू डिफाइन दैट, मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ वो? नहीं बिल्कुल इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ आपको, वो तो काफी सब्जेक्टिव हो जाएगा फिर भी. जनरल में लेकिन तो इन जनरल मेल आपको क्या लगता है? मेल लगेगा, ठीक है. अब इसको ही मैंने इसको इस तरह से ओढ़ लिया है, इस तरह से. अब आपको क्या लगता है? इन जनरल फीमेल. फीमेल, राइट. ये जो कपड़ा है इसमें जेंडर नहीं है, ना इसमें इनइक्वालिटी है और ना ही इक्विटी है. ये जब एक जस्ट एक कपड़ा है जो एक कपास से बना हुआ है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा समाज निर्धारित करता है कि किसने क्या पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए. अब ये सिर्फ लड़कों में होता है, लड़कियों में होता है, ऐसा नहीं है. जैसे कि हमारा पूरा क्लोथिंग पैटर्न डिसाइड हो चुका है, ठीक है. तो इस डिसाइड हुए पैटर्न को ब्रेक करना काफी चैलेंजिंग है. जैसे आपने कहा कि मैं लड़का हूं तो मैं कभी भी कीर्ति कॉलेज के पीछे जो बीच है वहां पर टी शर्ट निकल के आराम से बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ह्यूमिडिटी फील होती है वहां पे, ठीक है. बहुत पसीना आता है, बट लड़की नहीं कर सकती. एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे कपड़े कि जो लड़के नहीं पहन सकते, ठीक. मुझे लगता है कि कपड़े पहनना ये हमारी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए. अब ये सोसाइटी डिसाइड नहीं कर सकती कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए. अगर किसी लड़की के ब्रा का स्ट्रिप्स भी अगर दिखाई देता है तो बवाल खड़ा हो जाता है पूरा. और लड़के पीछे अपना जॉकी निकाल कर चलते हैं तो कोई बवाल नहीं खड़ा होता, कोई दिक्कत नहीं खड़ी होती है ना. तो यहाँ हमको सवाल करना पड़ेगा कि क्यों ये होता है, क्यों कोई व्यक्ति अपने मर्जी के हिसाब से, मन के हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकता. और इसकी शुरुआत हमको खुद से भी करनी पड़ेगी. बहुत बार हम लोग पिंक ड्रेस नहीं पहनना चाहते, यार नहीं ये अच्छा नहीं दिखता. तो रिसेंटली मैंने एक बैग खरीदी और वो बैग का कलर है पिंक. काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा भाई ये लड़कियों वाला कलर क्यों पहनता है. बट इन स्टीरियोटाइप को कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा. तो एक राहुल सांस्कृतिक नाम के काफी वेल नोन फिलोसोफर हो चुके हैं, स्कॉलर हो चुके हैं, और वो कहते हैं कि हमारे समाज में जो एग्जाम्पल्स है उसको हम लोग आइडियल मानते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल की काफी इंटरेस्टिंग ये बात है कि
अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होती है। ऐसे हमारे सामने ढेरों एग्जाम्पल हमको रोज पढ़ाए जाते घर से. देख अमक्याचा पोरानं त्याच्या पोरीशी लग्न केलं, माय बापानं करून दिलं म्हणून बरोबर झालं, है ना. अगर कोई इंटरकास्ट करता है और उनके बीच में थोड़ी बहस होती है तो बोलते हैं, स्वतःच्या मनानं बघितलं ना म्हणून असं झालं. तो जो एग्जाम्पल्स हमारे सोसाइटी में अगर इस तरह से गढ़ने शुरू कर देंगे हम लोग कि ये होता है, सक्सेसफुली होता है, इसे पहनने में कोई गलत बात नहीं है, तब जाके काफी बदलाव होगा. और ये बदलाव हमारी प्रैक्टिस से होगा, ठीक है, अपीयरेंस से होगा, परफॉर्मेंस से होगा. अगर आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट है ओमकार, मुझे उसका सरनेम नहीं याद आ रहा, शायद सोलंकी सरनेम होगा, ओमकार. तो ओमकार काफी इंटरेस्टिंग कपड़े पहनता है वो, ठीक है, कभी वो कानों में कुछ पहन लेता है. तो ऐसे एग्जाम्पल जब हम लोग सेट करना शुरू कर देंगे कि इट्स ओके कि मैंने जैसे बाल बढ़ाना शुरू कर दिया, तो मुझे घर में गांव वाले ये बोलते कि ये मूछ वाली बाई है हमारे घर की, ठीक. तो अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं बाल बढ़ाने का जो एक स्टीरियोटाइप है सिर्फ लड़कियां कर सकती है, ये एग्जाम्पल नहीं होगा. तो बदलाव थोड़ा सा शुरू करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बहस करनी पड़ेगी, तब जाकर हो सकता. और ये मैं भी अगर इस तरह का कमेंट करना बंद कर दूं कि क्यों लड़के ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्यों लड़कियां ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं बदलाव होगा और बातचीत होगी. और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर ऐसा कोई चीजें आती है तो इस पर आप बात कीजिए. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू. और कोई सवाल? Thank you for answering all the questions, sir. It was really interesting. थैंक यू सो मच. Yeah, may I request you just last comment करना चाहूंगा मैं. Yes, yes. So actually मैं काफी बार कीर्ति कॉलेज आता हूँ सेशंस लेने के लिए, डिस्कशन करने के लिए. हाँ. अब ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है ये मेरे लिए काफी चैलेंजिंग है और ये मेरी लिमिटेशंस है. तो ना कहीं जो आपको एक्सपेक्टेड था वो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कहीं कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है. और अगर हम लोग फिजिकल स्पेस में रहेंगे जहां पर एक्टिविटीज कुछ छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म में दिखाकर अगर बातचीत हो पाए वो बहुत मजेदार होंगे. सो इसे मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि अगर इनकेस ऑफ मैंने जो एक्सपेक्टेशंस है वो अगर वो पूरे नहीं किए, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि वो फिजिकल स्पेस में बेहतर होगा. यहाँ पर थोड़ा सा करने में दिक्कत हो जाती है. थैंक यू. Can I request Professor Harshad Bhosle to propose vote of thanks? Yeah, thank you, madam. Thank you very much. In fact, it was great honor and privilege to listen to Mr. Praveen Thote, who was our chief invitee and main speaker. He's from a very reputed NGO, MAVA, who has been associated with Kirti College for many years. Honorable Principal Dr. D.B. Pawar sir, Vice Principals, IQAC Coordinator Matthew sir, life members, my dear friends, colleagues, and dear students. It was indeed an honor and privilege to listen to Mr. Praveen Thote, who delivered a thought-provoking lecture on gender equity. In fact, the lecture has set out an open discussion on the term like sex and gender. Sex, as rightly as pointed out, is a biological concept, biological conception, and gender is a social construction which is related to behavioral pattern of people living in civil society. It is connected with attributes based on labels of masculinity and femininity. And therefore, I personally, on my behalf and on behalf of college, thank him for unfurling a very, very sensitive academic underpinning of this very, very serious issue. In fact, the students actually should know about this particular dichotomy because we are overburdened with stereotyping all images. And this stereotyping of images have unfortunately have entrenched in our public sphere. I thank very much Praveen sir, Praveen Thote sir for delivering lecture, for accepting our invitation. I thank
all the participants, all the teachers. I thank all those who have interacted, who have asked questions. And finally, and certainly not the least, Women Development Cell, Subhashri Prabh Madam, and all the committee members who have taken extra efforts to bring out this very, very sensitive issue and bringing some light in the dark abyss. Thank you very much. With permission, kind permission of Honorable Chairperson, I declare that this program is over. Thank you very much. Thank you, Harshad sir, for your very interesting vote of thanks as usual. Thank you, Praveen sir, for coming, and thank you all students for being over here till the fag end of this program, and all the faculty members. I would declare this program is over, like Harshad sir said, and we look forward, sir, for a future association with you. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you all. We all can lead, sir.